हेलो माय डियर किडोज, हाउ आर यू? वेलकम। कैसे हो? सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, नाइस टू सी यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर differential equations of class 12, the Triumph batch. I welcome all of you on the PW Gulf channel. ठीक है, तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हल्का सा रिव्यू कर लिया जाए. व्हाट आर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, general and particular solution of differential equations, methods of solving differential equation, variable separable method एक तरीका है, homogeneous differential equation and linear differential equation. These are the three methods which we will be learning. बहुत important है, all three methods are very important and I'll be giving you proper steps to solve each of the type of questions. ठीक है, तो स्टेप्स को लिखना जरूर है आप लोगों को. अब बीच में से एक टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. ऑर्डर एंड डिग्री में से 1 मार्क का क्वेश्चन तो पक्का पकड़ ही लो, बोर्ड एग्जाम्स में आना है. What is the weightage of this chapter? Now again, chapter wise weightage is not given by CBSE. It is always the unit wise weightage, but we can say on an average we get to see 5 to 6 marks from this particular chapter of differential equations. Is that okay? 5 to 6 marks में से generally order and degree पे एक या दो सवाल होते ही हैं, 1 पकड़ के चलो on an average, and then any one definitely होगा ही होगा. ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस और LDE, you have to consider this chapter as a मीडियम लेवल डिफिकल्टी चैप्टर. कुछ बच्चे इसको हाइप कर लेते हैं, डिफिकल्ट है. नहीं, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, इट इज मीडियम, इजी टू मीडियम लेवल में ये चैप्टर आता है. इसके क्वेश्चंस भी इजी टू मीडियम लेवल में होते हैं. ऑल यू नीड टू नो इज बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. The very first thing which you learn is differentiation, right? Continuity differentiability chapter में. After that you learn integration. तो ये उसके बाद आता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा. आपको डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेट करके आंसर निकालना. अगर इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएट करके, वो पार्ट डिलीटेड है. सो बेसिकली यस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर देयर इन दिस चैप्टर differential equations. Let's talk about the definition. What is the meaning of differential equation? मैं सिर्फ उन्हीं पार्ट्स के बारे में बात करूंगी जिसमें से MCQ बन सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ना. Yes, we have seen कि डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है MCQ बेस्ड. So everyone knows when I say dy by dx, the y is the dependent variable and x is your independent variable. y x. It's like टेबल के ऊपर मैंने ये पेन रखा है. So the pen is depending on the table. जो ऊपर है वो नीचे वाले पे डिपेंड कर रहा है. नीचे वाला तो इंडिपेंडेंटली घूम सकता है, कहीं भी पेन भी घूमेगा. बट क्या ऊपर वाला इंडिपेंडेंटली घूम सकता है, टेबल साथ घूमेगा? नहीं. So the pen is dependent on table. The upper one is dependent on lower one. Dependent, independent. ऐसे याद रख सकते हो. y ऊपर है, x नीचे, so y is dependent, x is independent. जो भी नीचे होता है वो independent, जो ऊपर होता है that is dependent variable. Simple. Okay. Rate of change of y with respect to x. So what is the definition? Differential equation definition. An equation. What is differential equation? It's an equation. Wow. That involves independent variable. In our case, independent variable यानी x, dependent variable यानी y, समझ लो, and derivatives of dependent variable is called differential equation. Derivatives of dependent variable का मतलब dy, d2y, double derivative, single derivative, third, any derivative of dependent variable, dy by dx, d2y by dx square, है ना. ये सारे derivatives है. तो x है, y है और derivatives है. ऐसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये dy by dx equal to 0, इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन. देन 2x minus 3y, अच्छा यहाँ पे ये था. this complete thing is a differential equation. Similarly, it's a function of x, y, first derivative, second derivative,
differential equation. Now there are two very important parameters to define a differential equation. First is order and second is degree. Let's understand what is order and what is degree. बहुत ध्यान से सुनना, 1 मार्क आपको पक्का लेके आना है इसमें से. Order of a differential equation is simply number of times differentiated. क्या होता है? Number of times differentiated. आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने बार डिफरेंशिएट किया है? हाईएस्ट 1 2 3 4 कितने बार डिफरेंशिएट किया? अगर डेफिनेशन देखना है तो ऐसे ही कुछ है. इट इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग इन द इक्वेशन. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो सिंपल अपन कैसे याद रखते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड. जैसे dy by dx ऑर्डर 1, d2y by dx स्क्वायर है तो ऑर्डर 2, d3y by dx क्यूब है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा. I'll be taking lot of examples, nothing to worry about it. चलो बात करते हैं. ये तो डिग्री है, ये तो डिग्री है, डिग्री. This is degree of differential equation. डिग्री ना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. ऑर्डर बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है. जितने बार डिफरेंशिएट किया वही हमारा ऑर्डर होगा. Order will always exist. It will always exist. उसका कुछ नखरा नहीं है, हमेशा एग्जिस्ट करता है. कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, सिंपल. बट डिग्री को एग्जिस्ट कराने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं. क्या कंडीशन होती है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. जो भी सबसे बड़ा ऑर्डर होगा ना बच्चों, जो भी ऑर्डर होगा उसी का हाईएस्ट पावर आपको देखना है. जो सबसे बड़ा ऑर्डर है उसका सबसे बड़ा पावर क्या है? अगर ऑर्डर 2 है तो उसका सबसे बड़ा पावर क्या है? वही डिग्री है. बट डिग्री के लिए 2 कंडीशंस होती हैं. ये दोनों कंडीशंस को दिमाग में घुसेड़ लीजिए. फर्स्ट कंडीशन इज इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन should be a polynomial of derivative. तभी डिग्री एग्जिस्ट करेगी. should be a polynomial of derivative. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंडीशन, बहुत जरूरी कंडीशन है ये. इट शुड बी अ पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव. इसका मतलब क्या है? समझ नहीं आया? ठीक है, बताती हूँ थोड़ी देर में. फिलहाल आप लिखिए. और सेकेंड कंडीशन है डिग्री शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स. रेडिकल्स माने समझते हो ना? रूट्स. मतलब पावर रूट में नहीं होना चाहिए. इधर डिग्री की जगह मैं लिख देती हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, नेगेटिव पावर्स, फ्रैक्शंस एक्सेट्रा. पावर में आप नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस या फिर रूट्स नहीं देख सकते. इफ देयर इज रूट, fraction, negative, try to convert it into integer. Try to convert it in simple words into natural numbers. If you can, great. If you cannot, degree does not exist. So may or may not exist. डिग्री के बारे में हम क्या बोलेंगे? may or may not exist. जरूरी नहीं है कि डिग्री हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही. अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो डिग्री एग्जिस्ट. If it is not satisfied, degree will not exist. Let's talk what is this 2 condition very nicely one by one. So once again, no negative and fractional powers are allowed. ध्यान में रहेगा. Okay. Polynomial of derivative, ये word शायद तंग कर रहा होगा. What is the meaning of polynomial of derivative? यहाँ पे आइए. क्या आप सबने ये फॉर्मेट देखा है पोलिनोमियल का? कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल. ये कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाइड होते हैं, इसको हम जनरल पोलिनोमियल बोलते हैं. 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा स्कूल में. पोलिनोमियल कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है. पावर्स में क्या है? n, n-1, n-2, ऐसे नेचुरल नंबर्स पावर में, ऐसे कुछ ऊट पटांग चीजें नहीं होती. इट्स अ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल. अब मैं क्या बोल रही हूँ? आई एम सेइंग पोलिनोमियल ही होगा, पोलिनोमियल के जैसा ही होगा,
दिस इज पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, मैं चाहती हूं इट शुड बी पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव यानी कि पहला एग्जाम्पल dy बाई डी, जैसे a dy बाई डी एक्स रेज टू n प्लस a n माइनस वन dy बाई डी एक्स रेज टू n माइनस वन, इस तरीके का अगर कुछ होता है तो इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, जहां पे कांस्टेंट और डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है। कांस्टेंट है, डेरिवेटिव है, वेरिएबल भी हो सकता है बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स भी होता है। क्या नहीं है पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव? समझ लो e रेज टू dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। इज इट अ पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव? क्या पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव पावर में होता है? नहीं। डेरिवेटिव कहाँ होना चाहिए? या तो किसी कांस्टेंट से या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। यहाँ पे तो डेरिवेटिव पावर में आ गया, सो इट्स नॉट अ पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 91। इज इट अ पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव? नहीं। डेरिवेटिव फिर एक लॉग फंक्शन में आ गया। डेरिवेटिव क्या है? लॉग फंक्शन। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, यहाँ पे दिस इज अ नॉट अ पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, दिस इज लॉगरिथमिक ऑफ डेरिवेटिव, लॉगरिथम ऑफ डेरिवेटिव, सो इट्स नॉट अ पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट, मान लो कुछ ऐसा आ गया, sec dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू dy बाई डी एक्स। Is it a polynomial of derivative? No, it is trigonometric of derivative. डेरिवेटिव है लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, तो फिर से हम इसको पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट वन, अगर कुछ ऐसा आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 3 प्लस dy बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 1। क्या ये पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव है? यस, इट इज पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। वाई बच्चों, क्यों ये पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव? सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स या तो नंबर या फिर कांस्टेंट, या फिर मतलब नंबर ही कांस्टेंट है, या तो कांस्टेंट या वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, या तो कांस्टेंट या तो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है। कहीं पे भी डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं है, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सिंपल इस फॉर्मेट में है, बस केवल x की जगह dy बाई डी एक्स का रूप आ चुका है। सो इट इज पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पहचानने आना चाहिए, इट शुड बी अ पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। बच्चों, सबको ये वाला टर्म समझ में आया? पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। हमको 1 मार्क लेने के लिए इतनी सी बात समझ में आ गई, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी अ पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। दूसरी बात, पावर में कोई फ्रैक्शन, रूट या नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। अगर है तो हटाने की कोशिश करो, हट गई तो अच्छी बात है, नहीं हटती है तो छोड़ दो। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। सो इफ वी आर एबल टू राइट इट एज पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स, हाउ टू फाइंड डिग्री? तो या इफ वी आर डिग्री एग्जिस्ट, if we aren't able to write it, then degree is not defined, degree does not exist। क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर डिग्री निकालना। पहला क्वेश्चन, d4y अपॉन dx रेज टू 4 प्लस साइन ऑफ y के ऊपर है ना 3 डैश, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको फिर से लिख देती हूं यहाँ पे, d4y अपॉन dx रेज टू 4 प्लस साइन ऑफ d3y बाई डी एक्स। क्यों बच्चों? ऑर्डर के लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो मैंने ऑर्डर लिख देना है। ऑर्डर तो मैं लिख ही दूंगी, ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर क्या है? कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड, 4 बारी डिफरेंशिएट किया है, तो ऑर्डर इज 4। व्हाट अबाउट डिग्री? डिग्री के लिए हम 2 कंडीशंस चेक करेंगे। पहला, it should be a polynomial of derivative. Is it a polynomial of derivative? No. तो फिर डिग्री क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिस्ट मत बोलो, नॉट डिफाइंड बोलो। टेक्सचुअल लैंग्वेज है, अच्छा लगेगा। रीजन देना बहुत जरूरी है, कई बार पूछता है, इफ इट डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट गिव रीजन।
रीजन क्या है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। ये आपको मिल गया 1 मार्क। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, सुपर्ब, ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ds by dt the whole raised to 4 plus 3s d2s by dt square equal to 0. It's a differential equation. ऑर्डर अगर बच्चों बताना है, ऑर्डर यानी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया है, तो बच्चे बोलेंगे 4, अरे 4 बार नहीं डिफरेंशिएट किया, पावर 4 है। यहां पे तो ds by dt एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, d2s by dt स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट किया है। एक लिखूं कि 2 लिखूं मैम? 2 लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड ही लिखते हैं हम। अब डिग्री निकालना है, डिग्री के लिए 2 कंडीशंस देखो, इज इट अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव? यस है ना, कहीं पे भी अपना डेरिवेटिव जो है किसी और फंक्शन में नहीं है, प्रॉपरली अलजेब्राइक फॉर्म में है, नंबर, कांस्टेंट, वेरिएबल्स यही सब है, सो इट इज पॉलिनोमियल। दूसरी चीज, पावर में कोई नेगेटिव टर्म या रूट वूट तो नहीं दिख रहा है, फ्रैक्शंस नहीं, तो डिग्री तो है। क्या है डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जहां से भी आपने ऑर्डर उठाया ना, उसी का पावर लिखना है। आया मजा? जहां से भी आपने ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर इस वाले टर्म से निकालिए। आप बोलोगे मैम ये हाईएस्ट है ना, 4 हाईएस्ट है, तो डिग्री 4 लिखो। वो तो फर्स्ट ऑर्डर का है, प्रेफरेंस हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर को जाएगी। सो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, उसका जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होगा, उसका जो हाईएस्ट पावर है बेटा वही डिग्री होगा। सो ऑर्डर 2 डिग्री 1। नेक्स्ट वन, determine the order in degree if defined d2y by dx square is cos 3x plus sin 3x। ऑर्डर तो बता ही देंगे हम। ऑर्डर क्या है बेटा? 2 बार डिफरेंशिएट किया, और कहीं तो कुछ है ही नहीं डेरिवेटिव, सो 2 बार डिफरेंशिएट किया, इट इज ऑर्डर 2। व्हाट अबाउट डिग्री? 2 कंडीशंस देख लो, इज इट अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव? यस इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। आप बोलोगे मैम कॉस और साइन आ गया, मुझे कॉस और साइन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कॉस और साइन के अंदर जब डेरिवेटिव आता है उससे प्रॉब्लम है। कॉस और साइन के अंदर x आ जाए, y आ जाए, नंबर आ जाए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, यहां पे इट शुड नॉट बी dy by dx और d2y by dx स्क्वायर और d3y by dx क्यूब, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, साइन और कॉस के अंदर एक्स वाई ये सब चलता है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, तो हम सिर्फ डेरिवेटिव पे फोकस करेंगे। डेरिवेटिव कहां पे? बाकी नंबर्स, बाकी वेरिएबल्स कहीं पे भी हो, हम डेरिवेटिव पे फोकस करेंगे। डेरिवेटिव है क्या इसके अंदर? नहीं, तो डेरिवेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव तो अपना साइड में। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, डिग्री एग्जिस्ट। डिग्री क्या होगा? इसका हाईएस्ट पावर, सो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री इज 1। वंस अगेन इट्स अ वेरी क्लियर, डिग्री और ऑर्डर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डर तो करेगा। ये देखो y ट्रिपल डैश यानी 3 बार मैक्सिमम डेरिवेट किया है, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार, ऑर्डर इज 3। अब उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। कोई ये मत बोलना मैम डिग्री 4 होगा, नहीं डिग्री 4 नहीं होगा, डिग्री 2 होगा। क्यों? जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी का पावर हमें चेक करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का पावर चेक करना है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। d2y by dx square is equal to y plus dy by dx raised to 6 the whole raised to 1 by 4। आहा, अब बोलो यार, ऑर्डर तो हम बता लेंगे। ऑर्डर यानी ये 2 बार डिफरेंशिएट किया है, इसको 1 बार किया है और इसको 1 भी बार नहीं किया है, तो सबसे ज्यादा 2 बार किया है, ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री डिफाइंड है क्या? इज इट पॉलिनोमियल? हाँ पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव किसी और फंक्शन में नहीं फंसा पड़ा है। इज द फंक्शन, इज द पावर फ्री ऑफ रेडिकल्स और फ्रैक्शंस और नेगेटिव पावर्स? नहीं ना यार, फ्रैक्शन आ गया पावर में, अब क्या करें? बोल दे डिग्री नॉट डिफाइंड। नो, ट्राई टू रिमूव ना, निकालने की कोशिश तो करो। जैसे हम स्क्वायर बोथ साइड्स करते हैं वैसे टेक पावर 4 ऑन बोथ साइड्स।
टेक पावर 4 ऑन बोथ द साइड्स। जब आप दोनों साइड में द होल रेज टू पावर 4 लगाने वाले हो, क्या हो जाएगा? ये जो द होल रेज टू 1/4 और इंटू 4 कट हो जाएगा। वी विल सिंपली हैव, अच्छा ठीक है मैं रख लेती हूँ ऐसे, d2y/dx² द होल रेज टू 4 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx रेज टू 6। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ एक्चुअल में। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, जो दिया था उसको हमने मॉडिफाई किया। अब पावर में कहीं पे फ्रैक्शंस, नेगेटिव, रेडिकल्स कुछ नहीं है, तो डिग्री क्या होगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका हाईएस्ट पावर, तो 2, इसका हाईएस्ट पावर 4, डिग्री इज 4। कैन यू अंडरस्टैंड? काफी है इतने एग्जाम्पल्स, ऑर्डर डिग्री के लिए इतने एग्जाम्पल्स काफी है बच्चों। पक्का? आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। चलो बढ़ते, लेट्स, यहां पे देखो यार, इट इज, आई विल रीराइट इट, e रेज टू, मे बी वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, d2y/dx² माइनस x इंटू d3y/dx³ प्लस y इक्वल टू 0। अब ऑर्डर इज वेरी सिंपल, बट डिग्री आप सीधा बोल सकते हो नॉट डिफाइंड, बिकॉज इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव टर्म है e के पावर में आ गया, नॉट डिफाइंड, रीजन लिख दो। ऑर्डर क्या होगा? मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया है, सो ऑर्डर इज 3। चलिए आते हैं अगले पार्ट पे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज दिस? आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में हाउ द क्वेश्चंस आर गिवन, यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया होगा और यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, और क्वेश्चन में ये लिखा होगा वेरीफाई वेदर दिस फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। आपको क्या वेरीफाई करना है? ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो बहुत सिंपल तरीका है वेरीफाई करने के लिए। ऑल यू आर गोइंग टू डू इज, मान लेते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 0। एंड मान लेते हैं फंक्शन यानी इसमें डेरिवेटिव नहीं होगी ना, सिर्फ फंक्शन y और x और वेरिएबल, सो y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 9। मान लेते हैं ये y दे रखा है, ठीक है। ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है या नहीं, ये आपको चेक करना है। आई कैन सी देयर इज डबल डेरिवेटिव, देयर इज सिंगल डेरिवेटिव, सो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। चलो अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट dy/dx, बच्चों उसको y डैश भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 3 3 = 9x², और जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे d2y/dx² क्या होगा? 9 2 = 18x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हम LHS में लेके सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। d2y/dx² की जगह 18x प्लस dy/dx की जगह 9x² प्लस 3y, y क्या है ये, सो 3 3 = 9x³ माइनस 3 9 = 27। इज दिस 0? ये तो 0 कोई एंगल से आ ही नहीं रहा है, सो RHS 0 है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब क्या है? गिवन फंक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन फंक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत अच्छे से, बस वेरीफाई करना है आपको, क्वेश्चन देखना है और चेक करना है LHS RHS। अब 2 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मेरे को डार्क कलर कौन सा मिल रहा है? पिंक ले ले। चलो बस डेफिनेशन पढ़ लो, समझ जाओगे। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, अच्छा व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, तो इसको हम जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन बोलेंगे। बच्चों ये जो भी लिखा है ना,
इसको बॉक्स में डब्बे में क्यों डाला है, क्योंकि ये सीधे सीधे 1 मार्क MCQ आ जाता है, सीधे सीधे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये याद रखना। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। What will be order of differential equation? It is same as number of arbitrary constants, ठीक है, it will be same as number of arbitrary constants. So it is a fill in the blanks MCQ, जो समझना है समझ लो assertion reason में। और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, व्हेन यू गिव पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स, जब आप उस कांस्टेंट को कुछ वैल्यू दे देते हो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो मैं जनरल सोल्यूशन को जीएस और पर्टिकुलर सोल्यूशन को पीएस रेफर करूंगी, आप लोग समझ जाओगे। तो समझ लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं रैंडमली कुछ ले रही हूं, y डबल डैश प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मान लेते हैं फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए मानते हैं, इसका सोल्यूशन जो मुझे मिल रहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस c, ये मुझे सोल्यूशन मिला। तो क्या आप देख सकते हैं इसमें जो c है ना, इसमें जो c है ना बच्चों, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इसको मैं जनरल सोल्यूशन बोलूंगी। क्या बोलूंगी मैं, जनरल सोल्यूशन। वेल यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स होना जरूरी है। आई थिंक यहाँ पे मैं cy कर देती हूँ, ठीक है, cy, तो एक को c1 एक को c2 बोल सकते हो। तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, ऑर्डर 2 है तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया। अब मैंने c1 और c2 की वैल्यू अगर ढूंढ के निकाल ली, कुछ वैल्यू आ गई, यानी 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 1/2, यानी c1 मैंने 3 ले लिया, c2 1/2 ले लिया। ये जो सोल्यूशन है इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या इसमें आपको कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिल रहा है, यानी कि ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है? नो, I cannot see any random constant here. All the constants are known, so it is particular solution. If there is some random constant, it's general solution. Simple. We can give any value to arbitrary constant. Solution of a given differential equation are infinite. तो once you get a general solution, ये C1 C2 की वैल्यू चेंज करते जाओगे, आपको ढेर सारे solutions मिलते जाएंगे। So infinite solutions होता है differential equation के। वो पूरा डब्बे डब्बे में था ना, बहुत इंपॉर्टेंट सा। अब देखो ये क्वेश्चन है, वेरीफाई, ये फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबको समझ आ रहा है। वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, इट इज आवर फंक्शन d2y/dx² और dy/dx, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे चेक करना ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या क्या जरूरी है, वी नीड डबल डेरिवेटिव, वी नीड सिंगल डेरिवेटिव। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू e⁻x, इसीलिए मैंने बोला डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों आना जरूरी है। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आगे इंटीग्रेट भी करेंगे। व्हाट इज d2y/dx²? सेम। अब इसको उठा के हम LHS में रख दें डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो LHS क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश इज e⁻x, y डैश इज e⁻x, आंसर 0 आया। RHS भी 0 है, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर वेरीफाई कर लिया आपने, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरीके का सॉल्यूशन है ये, पर्टिकुलर या जनरल? ये पर्टिकुलर है बिकॉज कोई कांस्टेंट नहीं है इसमें, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड कांस्टेंट्स है। So it is a particular solution of the given differential equation. All right बच्चों, चलो अब हम जाते हैं methods of solving पे। ये आधे घंटे में हमने ऑर्डर, डिग्री और सोल्यूशन क्या होता है वो समझ लिया। अब जाते हैं आगे, मेथड ऑफ solving differential equation. So there are 3 methods as I discussed: variable separable, homogeneous differential equation and linear differential equation. वेरिएबल सेपरेबल, चलो इसको भी पूरा लिख दो। मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे VS, HDE एंड
LDE. हाउ टू नो, ज्यादा करके डाउट होता है हाउ टू नो विच मेथड टू यूज इन अ गिवन क्वेश्चन. मैं HDE से सॉल्व करूं, होमो से करूं, मतलब LDE से करूं या VS से करूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, हम लोगों को तो देख के जब प्रैक्टिस अच्छी होती है, जस्ट बाय लुकिंग एट इट यू गेट एन आइडिया विच मेथड इज टू बी यूज्ड. बट ठीक है, समझ लेते हैं, हम शुरुआत अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं. सो यू विल ऑलवेज सी इफ इट इज पॉसिबल टू डू वेरिएबल सेपरेबल. आप फर्स्ट हमेशा ट्राई करोगे कि VS से हो रहा है क्या, आर यू एबल टू सेपरेट द वेरिएबल्स. नहीं हो रहा है, देन यू विल सी क्या वो होमोजीनियस के फॉर्मेट में फिट हो रहा है. व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ होमोजीनियस? dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ x, y. एक तरफ dy by dx, दूसरी तरफ बाकी सारे टर्म्स, जो भी कुछ है दूसरी तरफ. क्या इस फॉर्मेट में हो रहा है? अगर हो रहा है तो होमोजीनियस से कर लो. नहीं, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई करोगे. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कंडीशन है? dy by dx प्लस py इक्वल टू q. अगर इस फॉर्मेट में है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना. व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल? एक तरफ y और एक तरफ x. तो तीनों के फॉर्मेट्स, तीनों का स्टाइल अलग है, तीनों अलग दिखते हैं. थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. यू हैव टू डू इनिशियल एडजस्टमेंट्स टू फाइंड एनी ऑफ द वे एंड देन प्रोसीड विद द स्टेप्स. वो इनिशियल स्टेप्स करना होगा आपको सारे क्वेश्चंस में, थोड़ा सा यहाँ वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा. सो चेक VS, चेक HD, चेक LD, तीनों में से कोई एक ना एक मेथड तो फिट होगा ही. नहीं होगा तो फिर से चेक करो, क्योंकि होना ही चाहिए, फिट होना ही चाहिए बच्चों. सो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट मेथड विच इज VS मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. देखते जरा क्या है. स्टेप्स इन्होंने दे रखा है, ठीक है, इन्होंने दे रखा है. ऑलराइट बच्चों, मैं मेरे स्टेप्स देती हूं. VS मेथड में सबसे पहला स्टेप, जैसा नाम वैसा काम, सेपरेट, ट्राई टू सेपरेट द वेरिएबल्स. सेपरेट वेरिएबल्स, और कोशिश करना, कोई रूल नहीं है ऐसा, बट कोशिश करना दैट यू कीप y ऑन लेफ्ट साइड एंड x ऑन राइट साइड. उल्टा भी कर सकते हो, कोई लॉजिकली मैथमेटिकली गलत नहीं है, बट हम y को लेफ्ट में रखेंगे, x को राइट में. ऑल्सो एक और टिप दे रही हूं, नेगेटिव साइन को राइट में रखने की कोशिश करना. नेगेटिव लेफ्ट राइट कहीं भी जंप कर सकता है, तो आप राइट में रखना नेगेटिव को. सो सेपरेट द वेरिएबल. सेकंड होगा, एक बार आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. और एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो जो फाइनल आएगा, आपको फाइनल चीज आएगा ना, जिसमें कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं होगा, सारे डेरिवेटिव निकल जाएंगे, दैट विल बी योर जनरल सोल्यूशन. आपको जो भी मिलता है वो आपका जनरल सोल्यूशन होगा. फिर अगर वो बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, तो आप एक और स्टेप करोगे, वरना जनरल सोल्यूशन पे स्टॉप. सो बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यदि मैं बात करूं, इफ देयर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट हैज सम डेरिवेटिव वाला टर्म्स, मतलब कुछ dy होगा, कुछ dx होगा, डिफरेंशियल टर्म्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होंगे उसमें. मुझे अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो डेरिवेटिव हटाना पड़ेगा. ये सिर्फ फंक्शन होगा, यानी कि इसमें x y कॉन्स्टेंट्स होंगे केवल. तो जी यदि मुझे डेरिवेटिव हटाना है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट. हम लोग ने क्या करना है? इंटीग्रेट. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अगर निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर निकालना है, तो इंटीग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट डेरिवेटिव हटाना. और इसका उल्टा प्रोसेस होगा, अगर आपके पास फंक्शन दिया है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, यानी कि आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, उल्टा, तो इंटीग्रेट करोगे कि डेरिवेट डिफरेंशिएट करोगे? इंटीग्रेशन है, उस केस में डिफरेंशिएट. तो वो टॉपिक निकाल दिया, जो उल्टा प्रोसेस है. फंक्शन दिया होगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है ना. फॉर्मेशन, जवाब दिया है, आपको सवाल बनाना है. जवाब दिया है, आपको सवाल बनाना है. तो उस केस में मुझे सवाल बनाना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डेरिवेटिव लेके आना है. यहाँ पे डेरिवेटिव लेके आना है, तो उस केस में हम डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, फंक्शन यानी x y कॉन्स्टेंट, ये सारी चीजें होंगी. बट ये डिलीटेड है,
ठीक है, ये डिलीटेड है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिलीटेड। आपको ये वाला पार्ट सिर्फ करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशिएट सिर्फ चेक करने के लिए करना है वो सोल्यूशन है या नहीं, आपको बनाना नहीं है क्वेश्चन को, बस चेक करना है सही है कि नहीं। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो, क्वेश्चन में हो गया है। ये देखो, एक तरफ x एक तरफ y, फिर इंटीग्रेट कर डालो। अब इन्होंने x लेफ्ट में रखा, y राइट में, मैंने आपको टिप दे दिया है, उल्टा करो। फाइंड द जनरल सोल्यूशन। देखो आप x और y को सेपरेट कर पा रहे हो, यस, बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। लेफ्ट साइड में आई विल कीप dy एंड ये 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx. Can you see left side is a function of x, right side is a function, left side is a function of y, right side is a function of x. If possible इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो। तो फर्स्ट स्टेप सेपरेट किया, सेकंड स्टेप में इंटीग्रेट कर देती हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो इंटीग्रल dy और राइट साइड में भी इंटीग्रल dx। इसको 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी नोइंग फॉर्मूला। 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 upon 2 cos square x by 2, that is tan square x by 2। पता है कि नहीं, चेक करो एक बार, इंटीग्रेट कर लो। अब इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है, y, एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर पता नहीं है तो उसको sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 लिख दीजिए। अब देखो क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हो, therefore y is equal to, आप बोलोगे मैम you integrated so you should write the constant also, इंटीग्रेशन के बाद तुरंत कांस्टेंट आता है, चिंता नहीं करो, I'll take it on the right side, I'll take the constant of integration, दोनों का एक साथ लिख दूंगी ना, क्या फर्क पड़ता है। so y integration of sec square will be tan x by 2। now do not forget you always have to divide with coefficient of x, तो coefficient x का coefficient हाफ है तो divide by हाफ यानी multiply by 2। नहीं समझा, चलो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x प्लस c। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट दोनों का कांस्टेंट एक साथ लिख दिया c, देयरफॉर ये 2 ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये जो मिला ना बच्चों, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द जनरल सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ये आप देख रहे हैं, पूरे 3 स्टेप्स किए हैं सिर्फ। इंटीग्रेशन तो हम अज्यूम कर रहे हैं, आप पिछले चैप्टर में करके आए हो, माहिर हो, एक्सपर्ट हो। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल। अच्छे से सुनना, पहले हम पहचानेंगे व्हाट इज होमोजीनियस फॉर्म। ये फॉर्म क्या है, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इज इट होमोजीनियस, इज इट नॉट होमोजीनियस, ये भी क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, आइडेंटिफाई वेदर इट्स होमोजीनियस और नॉट। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन अगर f ऑफ x, y के फॉर्मेट में है तो इसको इफ इट इज इक्वल टू f ऑफ, चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देती हूँ, f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y, if it is equal to lambda raised to 0 times f of x, y, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। यानी आपने x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखा तो लैम्डा रेस्ड टू 0 बाहर आ गया और फंक्शन इज बैक, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट आर द स्टेप्स, यू विल रिप्लेस x विथ लैम्डा एक्स, y विथ लैम्डा y। क्या करना है बच्चों, रिप्लेस करना है, x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, क्वेश्चन में, फंक्शन में, ठीक है। और अगर लैम्डा कॉमन आ जाता है ऊपर नीचे से, या लैम्डा रेज टू 0 कॉमन आता है, इफ लैम्डा रेज टू 0 इज कॉमन, देन गिवन फंक्शन इज homogeneous function, h homogeneous function। ओके, एग्जाम्पल, डायरेक्ट तरीका भी आप लोगों ने बहुत किया है, हर टर्म का अगर डिग्री सेम है, ईच टर्म हैज द सेम डिग्री, तो वो होमोजीनियस ही होता है ना। जैसे एक एक्स वाई है प्लस एक्स स्क्वायर,
प्लस 2xy, नहीं xy ऑलरेडी लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर 2y² इक्वल टू 0। तो क्या ये होमोजीनियस है? यस, यहाँ पे 1 1 यानी टोटल डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, ये होमोजीनियस ही होना है। ये नॉर्मल है, मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करने की बात करूँ। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे अप्लाई करेंगे? वेट, ये देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होगा, dy by dx इज f of xy अपॉन g of xy, ठीक है। Where f and g are homogeneous functions, यानी ऊपर f भी होमोजीनियस है, g भी होमोजीनियस है और दोनों की डिग्री सेम है, तो उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। Each term has same degree, x cube plus y cube डिग्री 3, x square plus y square plus xy डिग्री 2, x cube y cube 3x square y 2 plus 1 and 1 plus 2 डिग्री 3। तो सेम डिग्री each term, it is homogeneous। तो वैसे ही अगर dy by dx इक्वल टू f of x अपॉन g of xy, ऊपर और नीचे दोनों की सेम डिग्री है हर टर्म की, तो फिर इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। रिप्लेस, इन्होंने लैम्डा की जगह t लिया है, डजंट मैटर, x by t। तो मैं ये स्लाइड नहीं दिखाती हूँ वरना आप बोलोगे मैम दोनों जन अलग अलग बातें बता रहे। आते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन पे। यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेप्स दे रखा है, 6 स्टेप्स। मैं भी आपको अपने तरीके से स्टेप्स दूंगी और मैं 7 स्टेप्स दूंगी, ठीक है। आई विल गिव यू 7 स्टेप्स और इसको जो भी अभी बताया ना क्वेश्चन में भी अप्लाई करूंगी। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या है क्वेश्चन में लगा के दिखा दूंगी, बट पहले आप स्टेप्स लिखना। व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप है ऑलवेज ब्रिंग इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, dy by dx इज इक्वल टू f of x, y। मतलब एक तरफ डेरिवेटिव दूसरे तरफ फंक्शन, हमेशा क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ले आइए। सेकेंड स्टेप क्या होगा? यस, LDSR टाइप्स, लेट y इज इक्वल टू vx। लेट के बाद डिफरेंशिएट आना ही चाहिए, LDSR वाले बच्चे एग्री करेंगे। डिफरेंशिएट, व्हाट इज dy by dx? यूवी रूल अप्लाई कर दो, v प्लस एक्स dv by dx। अब ये जो भी आपने निकाला है, लेट डिफरेंशिएट, सब्स्टिट्यूट 2,3 इन 1। ये 2 और 3 सेकेंड और थर्ड स्टेप को 1 में डाल दीजिए, ये फोर्थ स्टेप है। सिंपल LDS। अब बोलोगे आर किधर है? रीसब्स्टिट्यूट एंड में करेंगे। 4 स्टेप के बाद बच्चों अब आप देखोगे आपके फंक्शन में से x तो है लेकिन y गायब हो चुका है। There is no y, it is a function of x and v, क्योंकि y की जगह आपने vx डाल दिया था और dy by dx की जगह v plus x dv by dx, so there is no y, you will see v and x। so अब उसको आप वेरिएबल सेपरेबल इन v and x, एक तरफ v दूसरी तरफ x, ऐसे आप तैयार करोगे, वेरिएबल सेपरेबल करोगे, एक तरफ v दूसरी तरफ x। अब वेरिएबल सेपरेबल के स्टेप्स क्या होता है? जैसे ही आपने सेपरेट किया, इंटीग्रेट ही करते ना वेरिएबल सेपरेबल के 3 स्टेप्स क्या है? सेपरेट, इंटीग्रेट, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको जो भी जनरल सॉल्यूशन मिलता है उसमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। इंटीग्रेट के बाद रीसब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? v इज इक्वल टू y बाई एक्स, जहां पे भी v है y बाई एक्स, एंड 8th स्टेप यू विल गेट जनरल सॉल्यूशन। सो लंबा लग रहा है ना देखने में, थोड़े से क्वेश्चंस का लेंथ लंबा होता है, बट इट इज वर्थ डूइंग। 8 स्टेप्स देख रहे हैं बाय हार्टेड बच्चों। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इफ यू फॉलो दिस 8 स्टेप्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ HD विल बी सॉल्व। दिक्कत आ ही नहीं सकती, गारंटी लिख लो। देखो क्वेश्चन को, इज इट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? इफ यू कैन आइडेंटिफाई जस्ट बाय लुकिंग, ग्रेट। डिग्री 2, नीचे भी डिग्री 2, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट समटाइम्स इन द क्वेश्चन दे विल से शो इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व। तो सॉल्व भी करना है, शो भी करना है। तो शो कैसे करोगे? लेट f of x, y बी इक्वल टू ये RHS।
है ना, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई बोल दिया। अब आप x की जगह लैम्डा x रखोगे, y की जगह लैम्डा y रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y मिल जाएगा। x की जगह लैम्डा x, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैं ना इसको डुप्लीकेट भी कर लेती हूँ, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस lambda square y square upon 2 lambda x into lambda y. Can you see from numerator I can take lambda square common and it is x square minus y square. From denominator also lambda square common, it is 2 times xy. Now lambda square कट गया या फिर ये 2 ऊपर चला गया, so 2 minus 2 is lambda raised to 0 and you have x square minus y square upon 2xy. So can you see that f of lambda x comma lambda y is actually equal to lambda raised to 0 times ये क्या है, ये आपका f of x comma y है। Therefore given differential equation is homogeneous. So only बच्चों जब बोला होता है कि शो करो ये होमोजीनियस है, तभी आप ये शो करोगे, वरना आप मेंटली इसको समझ लोगे कि होमोजीनियस है कि नहीं। मेंटली समझ लेना है और फिर प्रोसीड करना है 8 स्टेप्स करने के लिए। सो यू हैव टू बी शार्प इनफ, ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए, ऊपर पावर नीचे पावर सेम है, होमोजीनियस हो गया। ऑलराइट, अब इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स डू द 8 स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आर यू गाइस रेडी? फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ। इट्स ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इन सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन में वो नहीं होते स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जैसे कि ये, तो आपको बनाना पड़ता है, एक तरफ dy बाई डी एक्स, दूसरी तरफ सारा फंक्शन, है ना। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे, बट हमने क्या करना है, रिवाइज करना है, रिकैप करना है। सो ऑलरेडी इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप, चलो y को हटाने का प्रक्रिया शुरू करो। लेट y be equal to vx, LDSR, so differentiate dy by dx will be v plus x dv by dx. Now next step, substitute करेंगे 2 और 3 को कहाँ पे, 1 में। तो जैसे ही मैंने इसमें 1 में सब्सटीट्यूट किया, लेफ्ट साइड क्या हो गया, dy by dx की जगह पूरा का पूरा v plus x dv by dx। RHS में x square as it is, y square की जगह vx, so v square x square upon 2x, y की जगह vx। कैन यू से न्यूमरेटर से x square कॉमन 1 माइनस v square, डिनोमिनेटर से x square कॉमन 2v, x square कैंसिल, 1 माइनस v square अपॉन 2v। ये v को मैं राइट में लेके आती हूं, therefore x dv by dx is equal to 1 minus v square अपॉन 2v एंड ये v लेफ्ट माइनस v। मैं क्या कर रही हूं बच्चों, अब मेरा जैसे ही फोर्थ स्टेप हुआ, फिफ्थ स्टेप है कि वेरिएबल सेपरेबल करना है v में, एक तरफ v एक तरफ x। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ सारे v को एक तरफ, सारे x को एक तरफ। देखो ये कैसे कर रहे हैं, कोशिश सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। सो x dv by dx, यहाँ पे चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं RHS को, सो इट्स 1 माइनस v स्क्वायर माइनस 2v अपॉन 2v। व्हाट इज दैट? इफ आई टेक माइनस कॉमन, क्या बोलते हो बच्चों, माइनस साइन को कॉमन ले लें, इट विल बी v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 अपॉन 2v, करेक्ट? and let's do that. V square plus 2v minus 1, can I factorize it? देखिए लेफ्ट साइड में माइनस 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। ये माइनस मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, चलो राइट में ही रखते हैं ना माइनस। मैं सिर्फ ये टर्म को लेफ्ट में लेके आ रही हूँ, इंटू dv इज इक्वल टू माइनस एक्स dx। ये देखो x उधर जाएगा, x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, dx डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन मैंने रिटेन कर लिया, ये 2v ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। इज दैट ओके?
सो फार सो गुड, कोई दिक्कत? गली में अब कांड हो गया। कांड तो रियलाइज हो गया मेरे को, क्योंकि यहाँ पे इफ आई हैव टू इंटीग्रेट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, मतलब आई कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2, पर आगे प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लग ही रहा था कहाँ पे कांड हो गया। ये देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 2v इंटू वी माइनस 2v स्क्वायर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट यार? तुम मतलब मुझसे स्मार्ट हो, तुमने अगर पकड़ लिया तो तुम मुझसे स्मार्ट हो, और अगर नहीं पकड़ा तो फिर बेटा बन जाओगे। कोई बात नहीं, गलतियों से सीख लेते हैं। सो 2v यहाँ पे माइनस 2v स्क्वायर आना है बेटा, ठीक है कोई ना। सो माइनस v 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2v, ये मेरे को मिल रहा है यार। अब ठीक लग रहा है। Therefore x into dv by dx क्या मिला? इफ आई अगेन टेक माइनस साइन कॉमन, आदत है यार माइनस अच्छा से निकाल लेते हैं हम लोग। सो इट इज 3v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग, सेम थिंग, सारे dv टर्म्स इधर, dx टर्म्स उधर। सो ये 2v इधर ऊपर आ गया, 3v स्क्वायर माइनस 1 नीचे, dv एज इट इज है, इक्वल टू x यहाँ नीचे dx, एंड माइनस साइन बेटा भूलना नहीं प्लीज, मैंने उसको राइट में ही रिटेन किया है। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेट। बच्चों वेरिएबल सेपरेबल हो गया क्या? ये हमारा कितवा स्टेप है? दिस इज द फिफ्थ स्टेप, राइट? वेरिएबल सेपरेबल लेके आना हमारा फिफ्थ स्टेप था। ऑल v ऑन वन साइड एंड ऑल x ऑन द अदर साइड, दैट वाज द टास्क। पक्का पक्का पक्का, ग्रेट। इफ दैट इज अंडरस्टूड, तो अब देरी किस बात की, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 3v स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। मेरे प्यारे बच्चे, हाउ डू वी इंटीग्रेट दिस? 3v स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6v एंड 1 का डेरिवेटिव 0। सो इफ इन द न्यूमरेटर आई हैव 6v, काम हो जाएगा। तो ले आते हैं ना यार, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1/3, है ना? 3 2 जा 6 हो गया ये। तो चलो इसको 6 निकाल के लिख दे रहे हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3। नाउ कैन यू सी, ये फंक्शन है, डेरिवेटिव फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन, डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन रहता है, ऊपर डेरिवेटिव दिखता है। इट्स अ कोरोलरी 1/3 log mod of 3v स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x? इट इज log mod of x। एंड प्यारे बच्चों, व्हेन लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड्स हैव log, कोशिश करो व्हेन लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड्स हैव log, कांस्टेंट को भी आप log में ही लिखना, because it's an arbitrary constant ना, it's an arbitrary constant, it really doesn't matter whether you write it as c or you write it as log c। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों अगर आपने log c भी लिखा तो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। therefore 1 by ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे log a माइनस log b फॉर्मूला लगाते हैं और ये 1/3 को ऊपर लेके जाएंगे। सो log ऑफ 3v स्क्वायर माइनस 1 और पावर में 1/3, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, इक्वल टू log a माइनस log b इज log ऑफ a by b। अब log दोनों तरफ से हट गया, वी हैव 3v स्क्वायर माइनस 1 द होल रेज टू 1/3 इज इक्वल टू c by x। यहाँ पे स्टॉप करना है क्या? 6th स्टेप हुआ है, 7th स्टेप रीसब्स्टिट्यूशन बचा है। तो रीसब्स्टिट्यूट क्या, v की जगह y by x। therefore आपको 7th स्टेप रीसब्स्टिट्यूट करके 7th स्टेप और 8th स्टेप आपको जनरल सोल्यूशन मिलने ही वाला है। लेट्स चेक। 3v की जगह y by x the whole square minus 1 the whole raised to 1/3 is equal to c by x। ठीक है, you can leave it here और just क्यूब कर दो दोनों तरफ। और क्यूब करते वक्त मैं थोड़ा स्मार्टनेस दिखाऊंगी, मैं यहाँ पे c1 लिख रही हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। चालाक बच्चे यही करेंगे, c1 लिखेंगे। क्यों? अब लेट्स क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, 3 टाइम्स y by x द होल स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने लेफ्ट साइड इफ आई क्यूब 1/3 तो चला गया, इज इक्वल टू c1 अपॉन x द होल क्यूब। बल्ले बल्ले, c1 द होल क्यूब जो है, c1 क्यूब
को हम c लिख देते हैं. हाउ डज इट मैटर? इट्स अ कांस्टेंट. उसके साथ हम खेलेंगे, जी भर के खेलेंगे बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. सो c1 क्यूब को हम c लिख देते हैं. x क्यूब तो x क्यूब ही होगा. सो 3 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू c अपॉन एक्स क्यूब. मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट बाय एक्स क्यूब. यू विल गेट योर फाइनल आंसर 3xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू c. और ये भी सही है बच्चों, ऐसे भी छोड़ दो या फिर ऐसे छोड़ दो या फिर ऐसे छोड़ दो, वैसे छोड़ दो. एक स्टेप और कर लो. मैं एक्स क्यूब उस तरफ लेके जा रही हूँ. माइनस 3xy स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू सी. सब कुछ सही है यार. किसी भी फॉर्मेट, इक्विवेलेंट फॉर्मेट के लिए आपको आंसर मार्क्स मिलेंगे. इक्विवेलेंट फॉर्मेट होना चाहिए. एग्जामिनर सबसे ज्यादा इंप्रेस तब होगा जब आप उसके मॉड्यूल में जो दिया है उससे मैच करा दो, या फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो. कोशिश करो कोई रूट्स, कोई फ्रैक्शंस ना हो पावर में. कोशिश करो ऐसे डिवाइडेड टर्म्स ना हो. आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, बट फिर आप डिनोमिनेटर कर सकते हो सिंप्लीफाई. एक न्यूमरेटर वाला इक्वेशन बना सकते हो, तो क्यों डिनोमिनेटर रखना है ना. ये थोड़ा सा क्लटर्ड लगता है. सो ट्राई टू राइट इट इन एज सिंपल फॉर्म एज यू कैन. जितने ज्यादा कम माइनस साइन हो, जितने कम फ्रैक्शनल पावर्स हो, उतना ज्यादा बेटर. जितने कम डिनोमिनेटर्स हो उतना ज्यादा बेटर होगा आंसर. सो दिस इज द गिवन जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये देखिए लंबा है ना यार, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ दिखा दिया आपको. Whenever there is log on left and right, when you integrate, log दोनों तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों तरफ आ रहा है, तो आपको बिना झिझक के कांस्टेंट के साथ भी log लेना ही है कंपल्सरी. Why? So that we can use the property of log. Log A minus log B, log of A by B. कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, चलता है. और उसको C1 इसलिए किया क्योंकि फिर हमने आगे उसके साथ और खेल लिया. ऑलराइट बच्चों, खत्म हो गया ये क्वेश्चन. आप सिमिलरली ये क्वेश्चन को ट्राई करोगे. देखो मैं आपको फर्स्ट स्टेप करवा देती हूँ. वो जो dy by dx इक्वल टू समथिंग, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व. तो अब ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन होगा. आपको शो भी करना है ये होमोजेनियस और सॉल्व भी करना है, तो लंबा होगा. पहले आप लोग को पता है, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. सो एक्स dy इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और ये y dx यहां पे लेके आ रही हूं. तो फिर x dy इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड dx. ये dx को इधर लेके आ रही हूं. therefore dy by dx इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ये x नीचे. ठीक है, ये मेरे को मिल गया मेरा फर्स्ट स्टेप. स्टैंडर्ड फॉर्मेट dy by dx इक्वल टू f of xy. अब शो करने के लिए आप बोलोगे लेट दिस बी f of xy. नाउ रिप्लेस x विथ लैम्डा x, y विथ लैम्डा y, और चेक करो, पूरा सॉल्व करो, चेक करो क्या आपको f of लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा रेज टू 0 टाइम्स रिटर्न वही फंक्शन मिल रहा है क्या. मतलब ऊपर नीचे से लैम्डा शैम्डा निकल के कट हो गया, क्या आपको रिटर्न ये चीज मिल रही है. मिल गई तो यस हो गया, आपने प्रूव कर लिया. इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. एक बार प्रूव कर लिया, फिर अब आगे सेकेंड स्टेप, लेट y इक्वल टू vx. वो अपने 8 स्टेप्स आप कर लोगे. ओके, इसमें ट्राई जरूर करना. 5 मार्क्स अगर आप चाहते हो तो. पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला इन्होंने. पर्टिकुलर सोल्यूशन जब भी बोलेंगे बच्चों, व्हेनेवर दे से पर्टिकुलर सोल्यूशन, लास्ट में एक कंडीशन दे रखा होगा कि x और y की वैल्यू ये डालो. तो कोई ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको जो क्वेश्चन हमने किया उसी में करके दिखा देती हूँ. ओके, लेट्स से उन्होंने बोला था कि फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन व्हेन x इज 1 एंड y इज 0. मान लो ये कंडीशन दे रखा है. हमेशा व्हेनेवर दे से पर्टिकुलर सोल्यूशन कंडीशन जरूर दिया होगा. तो अपन क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन है. इसमें हम लोग, इसको हटा दे रही हूँ, इसमें हम लोग गिवन क्या बोला था, x1 y0 डाल दीजिए. 3x ये 0 हो गया, -1 इक्वल टू c विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1. c की वैल्यू 1 आ गई. अब इस c को
जनरल सोल्यूशन में आप डाल दीजिए 3x² माइनस x³ इक्वल टू 1। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन तैयार हो गया। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन इज जस्ट वन एक्स्ट्रा स्टेप। आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करके कभी आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है, सो व्हाई नॉट, इट्स नथिंग डिफरेंट। आपको अलग सोल्यूशन नहीं करना है। यू हैव ऑलरेडी फाउंड जनरल सोल्यूशन, फाइंड आउट सी, ये जो भी कांस्टेंट है उसको निकालो और रिटर्न रख दो। फाइंड द कांस्टेंट, keep it back, you get particular solution. How to find constant? It will be given in the question itself. Every time they will give you x and y. Let's move to the last type, as I said, linear differential equation. What is linear differential equation? ये definition समझो, again ये question directly आ सकता है 1 mark MCQ. A differential equation is said to be linear if dependent variable अपना क्या होता है y, dy by dx में its differential coefficient यानी dy occur in degree 1, यानी y और dy दोनों की डिग्री, y और dy by dx दोनों की डिग्री 1 है and they are never multiplied together, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी y dy by dx are never multiplied together and the degree is 1, उसको हम लीनियर यानी डिग्री 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो या तो अगर आप dy by dx बोल रहे हो तो y और dy by dx, अगर आपने dx by dy बोला तो x और dx by dy कभी साथ में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, दोनों का डिग्री 1, बिकॉज इसमें x क्या है डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यहाँ पे y डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, इनका डिग्री 1 होना चाहिए। सो पहला स्टेप आइडेंटिफाई, फिर आप देखो ये लीनियर इन x है या लीनियर इन y है। dy by dx है तो लीनियर इन y, dx by dy है तो लीनियर इन x, एंड देन सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप्स दे देती हूँ आपको, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर, first step, as they also said, identify type. दो टाइप्स होते हैं, एक है dy by dx प्लस py इक्वल टू q, दूसरा इसी का ऑपोजिट है dx by dy प्लस py प्लस px इज इक्वल टू q। इन फर्स्ट केस बच्चों, इन फर्स्ट केस ये y यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड केस में ये x यहाँ पे। इन फर्स्ट केस ये जो p और q है ना, दे आर फंक्शंस ऑफ x, ये p और q या तो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है। सेकेंड केस में p एंड q ईदर दे आर फंक्शंस ऑफ y, कुछ तो y के फंक्शंस है या फिर कांस्टेंट है। सो p एंड q कांस्टेंट होगा और फंक्शंस ऑफ x और y डिपेंड्स। पहले केस में यहाँ पे x है ना तो p और q x के फंक्शन होंगे, यहाँ पे नीचे y है तो p एंड q y के फंक्शन होंगे। ये दो टाइप है, आइडेंटिफाई द टाइप। सेकेंड स्टेप, एक बार टाइप आइडेंटिफाई हो गया, ये हमारा टाइप A है, ये हमारा टाइप B है, तो आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यू विल फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये भी दोनों टाइप के लिए लिख देती हूँ। टाइप A, फॉर टाइप A इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू इंटीग्रल p dx। p क्या है, x का फंक्शन है, इसीलिए इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। टाइप B के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू इंटीग्रल p dy, बिकॉज टाइप B में p इज अ फंक्शन ऑफ y, तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। थर्ड स्टेप, सब्स्टिट्यूट इन सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन क्या है, अगेन दो टाइप A और B। फर्स्ट टाइप के लिए सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस। इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, q की वैल्यू रखनी है और इंटीग्रेट करनी है। b के लिए इसका एग्जैक्ट उल्टा है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ठीक है। फोर्थ स्टेप, इंटीग्रेट, और जैसे ही आपने इसको ये इंटीग्रेशन है ना इसको कर लिया,
आपको फिफ्थ स्टेप जनरल सोल्यूशन हाथ में आ जाना, और अगर वो पूछते हैं तो पीएस निकालो वरना मत निकालो। क्लियर? एलडीई में क्या स्टेप्स करना है, मैंने दोनों टाइप के स्टेप्स एक ही साथ दे दिया। आई कुड हैव गिवन सेपरेटली टाइप ए टाइप बी, पर मैंने सोचा तुमने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुका है, यहाँ पे रिवीजन के लिए हो ना, तो एक साथ कर लो। टाइप बी डिलीटेड भी है, बट हम क्यों उसको डिलीट मान के चले, मतलब कितना डिफरेंस है यार। अगर एग्जाम में आ गया गलती से भूल चूक से, तो तुम बोलोगे नहीं 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 डिलीटेड है मैं नहीं कर रही हूं, करना तो पड़ेगा। जेई में बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली डिलीटेड है, बट डाल दिए थे, बहुत डाल देते हैं ना डिलीटेड में से भी, कहीं से भी कनेक्ट करा के। सो देयर हार्डली एनी डिफरेंस। अगर एक मेथड पढ़ रहे हो तो उसका उल्टा मेथड पढ़ने में मतलब क्या फर्क पड़ता है, बस एक्स और वाई को इंटरचेंज ही करना है और कुछ नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू बोथ द मेथड, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। यूज करना नहीं करना वो बात की बात है। लेट्स अप्लाई इट, आइडेंटिफाई द इक्वेशन वेदर इट्स लीनियर और नॉट। तो सबसे पहले ये dy by dx है, तो मुझे दो चीजें ध्यान रखनी है, द डिग्री ऑफ y and dy by dx should be 1 and they are not multiplied, so it is LD। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ग्रेट। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई करो लीनियर है कि नहीं। सो यहाँ पे भी dy by dx दिख रहा है, ओके। y कहाँ पे, यहाँ पे। क्या ये दोनों की डिग्री 1 है, यस। क्या ये दोनों मल्टीप्लाइड है, कहीं पे भी dy by dx और y मल्टीप्लाइड नहीं है, इट इज LD। गुड, चलो यार यही करते रहो। ये देखो ये भी दोनों की डिग्री 1 है लेकिन दोनों मल्टीप्लाइड है, सो इट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप एलडी मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हो। सो हाउ, जब आप कोई मेथड सिलेक्ट करते हो, इस मेथड से करूं या नहीं पहचानने भी आना चाहिए। जनरल फॉर्म एंड ऑफ एलडी ये तो मैंने डिस्कस कर लिया ना। ये देखो dy by dx plus py equal to q, it is LD in y, एंड ये उल्टा। हाउ टू सॉल्व, चलो आपको सब मिल चुका है, आपको बस क्वेश्चन करना है और ये खत्म करता है। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस। इज इट LD? dy by dx है, y है, दोनों की डिग्री 1 है, दोनों मल्टीप्लाइड नहीं है, सो यस इट इज एन LD। सॉल्व कैसे करना है, टाइप आइडेंटिफाई करो। टाइप ए में है ना, कंपेयरिंग विथ dy by dx प्लस py इक्वल टू q। देखो ये y इधर है एंड ये दोनों चीजें either they can be constants or function of x, so therefore p is equal to 2, q is equal to sin x। first step type identify, second step integrating factor, e raised to integral p dx। कभी कंफ्यूज हो गए इधर dx है कि dy, just see p is a function of x, तो आप इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू x ही करोगे। इंटीग्रल 2dx विच इज e raised to 2x। अब इसको सब्सटीट्यूट किस में करना है, सोल्यूशन में। सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, ये बाय हार्ट कर लो। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q है sin x इंटू e raised to 2x dx प्लस c। एंड फोर्थ स्टेप, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाय पार्ट्स। I differs first term integral second term minus integral derivative first term integration of second term। फिर I differs, फर्स्ट टर्म क्या होगा सेकेंड टर्म क्या होगा, इलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है, ट्रिग्नोमेट्री उससे पहले आता है। सो यस दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड देन सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म integration of e raised to 2x is e raised to 2x upon 2 minus integral derivative of sin is cos into integration of derivative of first term integration of second again e raised to 2x upon 2 plus c। वो प्लस c तो चलता ही रहेगा, ठीक है। फिर से y into e raised to 2x is equal to sin x e raised to 2x upon 2, फिर ये 1/2 कॉमन। फिर से इसमें देखो बाई पार्ट्स लग रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। चलो सो इट इज फर्स्ट टर्म क्या है cos x, सेकेंड टर्म का इंटीग्रल होगा e raised to 2x upon 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ cos विल बी माइनस साइन, तो ये यहाँ पे माइनस प्लस हो गया
साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ई रेज टू 2x अपॉन 2 एंड देन प्लस सी। ठीक है, अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो भाई ये जो है साइन एक्स इंटू ई रेज टू 2x ये तो यही है। और अगर मैंने इसको बोल दिया हमारा i, इफ आई से इट इज i, तो मुझे क्या मिल रहा है? इसको अलग से लेके सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है यार बच्चों, है ना। देखो ये मैं अलग से खाली उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। देख 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 देख, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। इसको i बोल दे, i इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया है, i इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये मेरा i है। ठीक है, समझ आ रहा है? i, ये टर्म को अलग से लेके हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब उसको फिर से, ये साइन एक्स ई रेज टू 2x अपॉन 2 सेम कॉपी है, ये माइनस सेम कॉपी है, 2 बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। कॉस एक्स इंटू ई रेज टू 2x को फिर इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। फर्स्ट टर्म इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होगा माइनस साइन, इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये साइन एंड देन डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ये फिर से i आ गया, तो मैं इस i को सिंप्लीफाई करती हूँ। साइन एक्स इंटू ई रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस मल्टीप्लाइड इन साइड 1/4 कॉस एक्स इंटू ई रेज टू 2x, ये माइनस प्लस माइनस i हो गया बाई 2, बिकॉज यहाँ पे 2 भी है, एंड ये माइनस, बस 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 बस, ये माइनस i/2 जब यहाँ पे आएगा, i प्लस i/2 3i/2, यानी i 3i/2 है ना, 3/2 को उधर लेके जाते हैं, 2/3 हो जाएगा। सो या साइन एक्स ई रेज टू 2x अपॉन 3 माइनस 3/2 उधर गया, 2/3, 2/12, 1/6 cos 6 e रेज टू 2x अपॉन 6। यहाँ पे अगर मैं C1 बोल दूँ इसको, है ना, ये हमारा C1 अगर है तो 3/2 उधर जाके C1 इंटू 2/3 विल बी C, ब्रैकेट में क्या C1 इंटू 2/3 को हमने C बोल दिया। एक कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट ही पकड़ लिया। ये बच्चों I मिला है। ठीक है, अब ये जो i है उठा के इधर रख दो, आपको जनरल सोल्यूशन हाजिर है। Therefore y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में लग जाती है ना थोड़ी सी मेहनत, हाँ मेहनत बोल रही हूँ और कुछ नहीं। तो इंटीग्रल मेरे को मिल रहा है साइन एक्स इंटू ई रेज टू 2x अपॉन 3 माइनस कॉस 6 इंटू ई रेज टू 2x अपॉन 6, और c है, यहाँ पे भी c है, तो मैंने एक ही कांस्टेंट लिखा, दो बार थोड़ी लिखूंगी, पागल थोड़ी है हम। ये थर्ड स्टेप था, फोर्थ स्टेप इंटीग्रेट करना होता है, फिफ्थ स्टेप अपने को जनरल सॉल्यूशन मिलता है। प्लीज चेक। कर लिया चेक पक्के से? परफेक्ट सम, ओके यस बेटा, थोड़ा सा गुफ अप हो गया है मुझे लग रहा है यहाँ पे जब -1/2 मैंने इस टर्म और इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, सो दिस बिकेम फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, बट सेकेंड टर्म में भी ये 2 और ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 हो जाना था, यहाँ पे गुफ अप हो गया यार। ठीक है, ये डिनोमिनेटर 4 हो जाना है। अब इसके बाद के स्टेप्स, वो डिनोमिनेटर 2 नहीं है 4 है। आई करेक्ट माई सेल्फ बच्चों, आई करेक्ट माई सेल्फ, आई स्टैंड करेक्टेड। डिनोमिनेटर 4 है, मेजर मिस्टेक। when you multiply -1/2 with first term you get -1/4 first term, -1/2 with second term you will get minus, ये i है और ये 2 और ये 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है,
सो ये i और ये i/4 विल बी 5i/4, टोटल 5i/4 इज इक्वल टू sin x e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस cos x e रेज टू 2x अपॉन 4 प्लस c लिख रही हूं मैं, जहां पे व्हाट इज c1 इंटू, ठीक है, प्लस c1 लिख रही हूं। अब ये जो 5/4 है उस तरफ भेज देते हैं, therefore i will be equal to 4/5 into फर्स्ट टर्म। 4/5 से जब मैं फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी I'll get 2/5 टाइम्स sin x into e raised to 2x। सेकेंड टर्म इफ आई मल्टीप्लाई विथ 4/5 मुझे 1/5 टाइम्स cos x into e raised to 2x, और ये c मिल जाएगा जहां पे व्हाट इज c1, c1 हटा दिया बिकॉज c1 इंटू 4/5 को मैंने c बोल दिया। फाइनल स्टेप, इस i को उठा के यहाँ पे हम सोल्यूशन में डाल रहे हैं। इस सोल्यूशन में हम देखो ये सोल्यूशन है, उसमें हम y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू, वो पूरा जो इंटीग्रेशन है वो हमको मिल गया 2/5 टाइम्स साइन x इंटू ई रेज टू 2x माइनस 1/5 टाइम्स कॉस x इंटू ई रेज टू 2x प्लस c। बच्चों अगर चाहते हो तो थ्रू आउट you can divide by e raised to 2x। we can stop here also, ये खत्म हो चुका है वैसे, बट मैं बता रही हूँ बस, सोल्यूशन मैच कराना है तो डिवाइड बाई e raised to 2x आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 sin x माइनस cos x एंड डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे लास्ट टर्म के साथ c e raised to माइनस 2x, बिकॉज ये डिवाइड फ्रॉम लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट को अगर e raised to 2x से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके e raised to माइनस 2x होगा। सो बोथ आर करेक्ट यार, बोथ आर करेक्ट। कहीं पे भी आप स्टॉप कर लो, आपको पूरे नंबर ही मिलने हैं। ध्यान से करिएगा, चैप्टर तो इंटरेस्टिंग है। ऑर्डर डिग्री, GSPS, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग में ये 3 मेथड्स, तीनों मेथड में यहाँ पे मैंने आपको 4 स्टेप्स दिए, यहाँ पे 8 स्टेप्स एंड यहाँ पे 5 steps in order to solve the question. Do go through them. Do let me know. Have you all understood everything? I think I've covered each and every corner of this chapter. अब last chapter का video जरूर देखना, which is the topic probability. All right. Till then, take care. Goodbye. See you all. Thank you so much.